So good afternoon, all of you. I am Professor Vijay Singh Rathod, and today we will take an introduction to data structures through C language. So Okay. yes. So I know many of you already know about data structure, and all of you may be knowing about datas. So just hold on, please. So what do you know about data? Who will tell what is data? So may I? Raw facts that What do you when understand? Data? processed are And whosoever speaks, just switch on your video and then speak. You should see also who is speaking. data is like raw facts that is when processed converted into information that we can use. Fine, raw facts. And what do you mean by facts? The information that is true, yeah, information that we get from something. Okay, anybody else would like to explain data? So it's the same. Okay, let me explain. So any characters, symbols, or quantities. Any form of characters, symbols, or quantities which can be stored into the computer and which can be processed by the computer. That is called data. Or you can say in a simple language, whatever we feed into the computer, that is called data. Whatever you can feed into the computer. What we can feed into the computer? We can feed any type of text, image, audio, video, anything we can feed into the computer. That is called data. And when we process that data, when we put some operations on that data, and when we make the data meaningful, it becomes some information. So what we say, the processed data is called as information, as somebody told out of you. So the main thing is, whatever we put into the computer, that is called data, and whatever computer gives us as a meaningful outcome of the data after some processing or after some operations, that is called information. So एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि किसी भी डेटा से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो वो तभी मिल पाएगी जब डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज होगा. जैसे मान लीजिए अगर आपके घर की बात करें तो घर पे जो आपका स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में आप लोग बुक्स, कॉपीज, पेन, रबड़, पेंसिल, बहुत कुछ होगा आपके पास. वो सब क्या है? डेटा है. अगर आपने वो रबड़, पेंसिल, बुक्स, कॉपी कहीं भी कैसे भी रखे हुए हैं, रख सकते हो. आपका स्टडी रूम आप चाहो जहाँ रखो, ठीक है. लेकिन जब कभी आपको रबड़ ढूंढना है और रबड़ नहीं मिल रहा आपको, या पेंसिल ढूंढनी है, पेंसिल नहीं मिल रही, या कोई बुक आप ढूंढ रहे हैं वो बुक आपको नहीं मिल रही, तो कैसा लगेगा आपको? तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या है, कंप्यूटर में अगर हम चाहें तो डेटा को किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करके स्टोर किया है, यानी कि द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द कंप्यूटर so that it can be efficiently used. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं. डेटा स्ट्रक्चर is a systematic arrangement of data in such a way that it can be used efficiently. पढ़ने में आ रहा सभी के? Are you all able to read this? Yes, sir. Yes, sir. Data structure is the systematic arrangements of item into the computer so that it can be efficiently used. जैसा कि हमने बातचीत की थी कि अगर अपने आप स्टडी रूम में बुक्स को प्रॉपर एक रैक में रख रहे हैं, ठीक है,
कॉपीज को प्रॉपर रैक में रखा हुआ है, और जो आपकी बाकी एसेसरीज है, हमारे रबड़ है, पेंसिल है, जो कुछ भी है, उनको आपने अलग कहीं रखा हुआ तरीके से। और जो आपके वो जो गार्बेज पेपर्स वगैरह होते हैं कुछ, है ना, रफ वर्क करने के लिए, वो रफ कॉपीज आपकी अलग रखी हुई है। तो जब कभी आपको उनमें से कुछ भी चाहिए होगा आसानी से, तो आप इजीली, आपको पता है कि बुक्स तो वहाँ रखी, तो वहाँ जाके बुक्स ढूंढ लोगे आप। अगर कॉपीज चाहिए तो कॉपीज की रैक में जाके कॉपीज ढूंढ लोगे। अगर आपको रबर पेंसिल वगैरह चाहिए, वो भी आपने सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, तो वहां से जाके लेके आ जाओगे। तो मतलब क्या होता है, यूज एफिशिएंटली। तो डेटा को स्टोर तो हम कैसे भी कर सकते हैं, पर डेटा को अगर सिस्टमेटिकली स्टोर किया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अभी एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कंप्यूटर की भाषा में कि हम, एक तो होता है टाइम, यानी कि मिनिमम टाइम में डेटा हमको क्या हो जाए, रिट्रीव हो जाए। जब भी कोई डेटा आपको चाहिए, कोई डेटा आपने स्टोर किया उसमें से, तो आपको मिनिमम टाइम में, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो, कम से कम हो, वो हमको मिल जाए। तो एफिशिएंटली का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए दोनों। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट यूज। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में, तो इसका नाम अपने आप में बोल रहा है, डेटा का स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द मेमोरी। क्या होती है अभी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन मेमोरी। इन मेमोरी, मेमोरी किसकी, कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करना, ताकि वो आगे जाकर के रिट्रीवल भी हमारा आसानी से हो सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, वो क्या नो बोलते Yes. हैं ना, ताकि पता लगता ऑनलाइन भी हो। कई बार क्या होता है, क्लास से लोग बाग निकल लेते हैं चुपचाप, पता नहीं लगता। ठीक है। सो अगर हम आपके बीसीए के पेपर नंबर 302 की या 301 की बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, प्रिमिटिव लेवल पे है। और अगर आपने रेगुलरली 20 से 25 क्लासेस अटेंड कर ली तरीके से, तो आपको सारा सिलेबस समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और उन टाइप्स में से हम लोग किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो शुड आई रिमूव दिस डेफिनेशंस? वैसे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली टू कैटेगरीज है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द वन इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अनदर इज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। पढ़ने में आ रहा सबको, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर हम कैटेगराइज की बात करें, अच्छा, प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने जाने अनजाने में पढ़ रखा है पहले से। जो आपने सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स, दैट इज कॉल्ड ए प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इंट, फ्लोट, ठीक है, कैर, डबल, वो जितने भी आपके टाइप्स थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये भी क्या था कि जो अगर कोई नंबर आएगा तो नंबर को आप क्या करोगे, इंटीजर की फॉर्म में सेव कर दोगे। कोई करेक्टर आएगा तो आप क्या कर दोगे, उसको कैर की फॉर्म में सेव कर दोगे। कोई ऐसा नंबर आएगा जो डेसिमल नंबर है, पॉइंटों वाला है, तो उसको हम क्या कर देंगे, फ्लोट में सेव कर देंगे। अगर किसी नंबर की रेंज ज्यादा है तो उसको किस में सेव कर देंगे, डबल में सेव कर देंगे। यानी कि हर प्रकार के डेटा के लिए क्या कहते हैं, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स थे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक इसमें एक और आता है कैटेगरी में, उसको बोलते हैं पॉइंटर। माना कि पॉइंटर कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है, बट पॉइंटर में हमने क्या पढ़ा था, पॉइंटर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो आप बोलते हो इंट स्टार। तो इंट स्टार का मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर वेरिएबल नहीं है, ये है इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, जो कि किसी इंटीजर का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये सब आपने सी लैंग्वेज में पढ़ रखे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जाने अनजाने में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसके बारे में अपन लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये इसको कई बार बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। कॉम्प्लेक्स या नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक हो गया लीनियर और एक हो गया नॉन लीनियर। तो जब कभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। वन इज
लीनियर, अनदर इज नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर देयर वाज अ डेटा स्ट्रक्चर अरे। अरे में क्या था, कोई somebody of you wants to define array, array क्या होती है, anybody of you? देखो अगर आप लोग भी बोलते रहो तो थोड़ा मजा आएगा बात करने। हाँ क्या करें? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है डेटा का। यस, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। अपने क्या पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो एरे इज ए सच सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन विच द डेटा इज अरेंज सिक्वेंशियली। यानी कि जिस अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अंदर, उस अरेंजमेंट में अगर अरेंजमेंट सिक्वेंशियली हो तो सिक्वेंशियली अरेंज डेटा को हम क्या बोलते हैं, एरे। तो सिक्वेंशियली अरेंज डेटा इज कॉल्ड एज अरे। तो ये अरे नाम का डेटा स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में कोई नई चीज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो अब तक पढ़ा है उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो आपने वेरिएबल्स पढ़े थे, इंट, फ्लोट, कैर, डबल पढ़े थे, वो तो कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर थे, वो थे प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर। और जो आपने एरे पढ़ा था वो क्या हो गया, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरे का मतलब सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। जैसे कि अच्छा, एरे की आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमको, अगर हम चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वेरिएबल्स में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने कहा इंट a1, इंट a2, इंट a3, इंट a4, अगर आपको 4 वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप के तो आप 4 वेरिएबल्स ले सकते हो, क्या दिक्कत है। बट हमने क्या सोचा कि अगर चारों वेरिएबल सेम टाइप के ही हैं तो बजाय कि हम उनको 4 अलग अलग मेमोरी लोकेशन देने के हम क्या कर लें, एक सिंगल मतलब एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन थे। ठीक है, और उसका नाम भी एक सिंगल ही हो जाए, तो हमने क्या बोल दिया, बजाय कि हम 4 वेरिएबल बनाने के हमने एक एरे बना दी 4 आइटम्स की। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका, इससे क्या हो जाएगा, जो मैंने कहा था एफिशिएंट, एफिशिएंट यूज, जो उसमें कहा था डेफिनेशन में कि अगर आपको चारों आइटम्स एक एक करके एक्सेस करने हैं तो आप एक लूप लगा के i = 0 से लेके आपने 4 तक का लूप लगाया और सब आइटम्स को इजीली एक्सेस कर लिया। अच्छा, ये तो 4 आइटम की बात थी। अगर मान लो आइटम 10 हो तो, 20 हो तो, और 100 हो तो, और एक्चुअल में तो आइटम 1-1 लाख भी होते हैं कई बार। तो अगर 1 लाख आइटम होंगे तो 1 लाख आइटम्स के लिए अगर आप 1 लाख वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे तो बड़ा भारी काम हो जाएगा, इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या किया कि अगर 1 लाख आइटम या कितने भी आइटम है तो हमने उन्हें, अगर वो सिमिलर टाइप के हैं तो हम क्या बना देंगे, उनकी एक एरे बना देंगे सिंपल। तो आपने क्या लिखा सिंपल सा, इंट ए ब्रैकेट में 20। इसका मतलब कि जो ए नाम की एरे है उसके अंदर 20 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और 20 एलिमेंट्स की वैल्यू को रीड करना है तो आप एक लूप लगा दो i = 0 से लेकर के 20 तक। ठीक है, और उस लूप में स्कैन ऑफ करके आप वैल्यूज को रीड कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज को राइट करना है तो फिर दोबारा एक लूप लगा दो 0 से लेकर 20 तक का, 19 तक का, सॉरी। ठीक है ना, और फिर हम क्या कर देंगे, उससे वैल्यूज को राइट भी कर सकते हैं। तो यानी कि वो जो आपका यूज हो रहा है डेटा का, वो एफिशिएंटली हो रहा है। हमने आराम से एक लूप लगा करके एफिशिएंटली 20 आइटम्स को रीड भी कर लिया, एफिशिएंटली 20 आइटम्स को राइट भी कर लिया। इसलिए हम बोलते हैं एरे को सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर या फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब जो एक ही लाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो सिक्वेंशियल का एक दूसरा नाम क्या हो गया, लीनियर भी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो अब तक की बातें अपन ने करी है वो तो आपने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या नोइंगली, अननोइंगली अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब अपन कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे और जो स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ही होती है। तो वो कौन कौन सी है, आज सिर्फ उनके नाम के बारे में बात करते हैं और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फिर डिटेल में अपन आने वाले 30 क्लासेस के अंदर डिटेल में सारा यही पढ़ेंगे। ये सब जो चार्ट बताया मैंने आपको, इसी चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग आने वाले अपने पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो लीनियर के अंदर एरे के अलावा होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट इज ए another type of data structures that is also linear। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम में लेते हैं, ये सब अपन लोग सब्सिक्वेंट जो क्लासेस अपनी होगी उनके अंदर सीखेंगे। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट के अलावा होता है इसके अंदर एक स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक में अगर आपको ध्यान हो, जैसे आपके पास 10 बुक्स है तो आप क्या बोलते हो, अगर आपको बुक्स को एक के ऊपर एक रखना है तो जो बुक्स को अपन ने एक के ऊपर एक रखा है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक अरेंजमेंट्स ऑफ द बुक्स। क्यों, क्योंकि जब आपने 10 बुक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी हुई है, जो बुक आपने लास्ट में रखी थी, जब आप उठाओगे सबसे पहले कौन सी उठाओगे, लास्ट वाली। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन लोग, यानी ऐसा सिक्वेंशियल अरेंजमेंट जिसमें कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आइटम लास्ट में आया था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो उस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन लोग स्टैक। या फिर आप डिफाइन कर सकते हो, स्टैक इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा सच दैट द आइटम व्हिच कम्स लास्ट इनटू द स्टैक, दैट इज द आइटम व्हिच इज टेकन फर्स्ट। तो इसको बोलते हैं लीफो।
LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कुछ लोग स्टैक को LIFO डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर आता है QUEUE, क्यू भी हम लोग सब जानते हैं, नॉर्मली हम नहीं बोलते कि भाई क्यू लगा के आइए, लाइन लगा के खड़े हो जाइए। तो क्यू का मतलब डेटा का द अरेंजमेंट ऑफ डेटा सच दैट द आइटम्स आर अरेंज्ड इन वन बाय वन एंड द आइटम व्हिच कम्स लास्ट इट इज प्रोसेस्ड लास्ट एंड द आइटम व्हिच कम्स फर्स्ट इट इज प्रोसेस्ड फर्स्ट। उसको बोलते हैं हम लोग FIFO, 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 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आइटम फर्स्ट आया था वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, जो आइटम लास्ट आया था वो लास्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। आपने एक फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें डायलॉग बोलता है कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो वो सिस्टम इधर नहीं चलेगा, ठीक है ना, इधर अमिताभ बनने की जरूरत नहीं है। क्यू का मतलब सिंपल सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? यस या नो बोलना Yes, पड़ेगा। sir. Yes, sir. लोग सोने नहीं चाहिए। अभी कितने लोग आगे क्लास में? लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास। सो इन द मीटिंग 19, वेरी नाइस, मतलब मोस्टली सभी लोग क्लास में आ गए, क्योंकि 19 तो मैं हूँ, उसके अलावा 18 स्टूडेंट्स हैं। तो वेरी प्राउड टू सी ऑल ऑफ यू। डेमो क्लास में आधे लोग आए थे तो मुझे लगा पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी आधे लोग क्यों नहीं आए। तो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट 100% अटेंडेंस इज देयर इवन इफ इट इज इवन आफ्टर दिस इज द ऑनलाइन क्लास। सो बट यू नो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अपने कंप्यूटर्स को ऑन रख के रहेंगे, दिमाग को भी ऑन रख के रहेंगे, तो फिर आपको लगेगा नहीं कि आप लोग कॉलेज में नहीं आए हैं, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है। शायद जैसी पढ़ाई आप लोग कॉलेज में आके करते वैसी ही पढ़ाई आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी। बस थोड़ा डिफरेंस क्या हो जाता है, हम जब कॉलेज में आते हैं ना, तो क्या है, जो 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि मैं आप सभी को देख सकता हूँ, आप सब मुझे देख सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या इसमें स्क्रीन में एक बार में 4 लोग दिखते हैं खाली, और जो बाकी जो 15 लोग होंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस। या मुझे देखना है तो मुझे थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ेगा इसको, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्या है कि जब हम क्लास में होते हैं तो भाई एक दूसरे से हम बातचीत भी कर सकते हैं, अपने डिस्कशंस भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा लिमिटेशंस यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती है। अदरवाइज अगर आप जो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, और टॉपिक को समझने की बात करते हैं, तो आई थिंक इट इज द बेटर वे, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि हर आदमी पर्सनली ध्यान दे रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आप सब अपने अपने घर में बैठे हुए हो, तो अगर वैसे देखा जाए एक्चुअल में, तो मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेले ही देख रहे हो, ठीक है ना, तो 1-on-1 हो रहा है ये। लेकिन कहने को क्या हो गया, 1-to-many हो गया। सो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और क्योंकि ये इस समय कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो हमारी मजबूरी भी है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। मजा आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कितने लोग कितने लोगों को मजा आ रहा है? एक बार यस सर। Yes, दो, yes, sir. तीन, Yes, sir. yes, sir. पाँच, Yes, छह, sir. सात, Yes, sir. सात मजा आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा। 9, बाकी 10 लोगों को मजा नहीं आ रहा। Yes, sir. आ रहा है ना? ठीक है ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ, आप लोग या मजे लेने आए हो कि पढ़ने आए हो? चलो ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू। तो हमने अब तक क्या देखा कि डेटा स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू द मेमोरी सच दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली लेटर ऑन, ठीक है ना। फाइन। दूसरा हमने क्या देखा कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो सब डेटा टाइप्स को बोलते थे हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे सिंपली हमारे पूरे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, कॉम्प्लेक्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसमें लीनियर एंड नॉन लीनियर दो कैटेगरी होती है, ठीक है ना। लीनियर कैटेगरी में एरे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लिंक लिस्ट हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी खाली आप नाम ध्यान रखें। स्टैक हम पढ़ने जा रहे हैं और क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द 4 बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इनके नाम ध्यान रहेंगे आपको आज की क्लास के बाद में, क्योंकि किसका काम क्या हो तो हम बाद में कर लेंगे। अब आते हैं अपन लोग नॉन लीनियर के ऊपर। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक, इनके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन अपन आगे जाकर वो जब जिस समय आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप सीख लोगे अपने आप। तो दीज आर द बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉन लीनियर में होता है एक तो ट्री और एक होता है ग्राफ। ये बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर में आते हैं, ठीक है ना। और ट्री और ग्राफ दोनों ही आपके बीसीए के सिलेबस में हाल फिलहाल नहीं रखे गए हैं, कि जब आप आगे जाकर के थोड़ा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे या आप एमसीए करोगे तब जाके आपको थोड़ा समझाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है। तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये 4 चीज आप लोग जाओगे और अपने अलग अलग यूनिट्स में आप इन चारों चीजों को
पढ़ोगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आपने क्या बात की थी, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो लीनियर और नॉन लीनियर तो क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी कि अगर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है तो लीनियर हो गए चारों ये, और सिक्वेंशियल नहीं है। ट्री में क्या होता है, ट्री में जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि अगर एक डेटा यहाँ पे है तो फिर दो उसके सब पार्ट्स हो जाएंगे, इसके फिर अगेन कुछ सब पार्ट्स हो गए, इसके कुछ सब पार्ट्स हो गए। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और ट्री चूंकि हमारे कोर्स में नहीं तो ज्यादा अपन इसके डेप्थ में बात भी नहीं करेंगे। ग्राफ का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, जैसे आपने फेसबुक में आप सभी लोग जुड़े हुए हो, फेसबुक में क्या होता है कि फेसबुक में ये मान लीजिए कि मैं आप लोगों का नाम यूज करता हूँ, ये यशवी है, यशस्वी, ये फ्रेंड है तन्वी की। ठीक है, तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यशस्वी एंड तन्वी इन फेसबुक। क्या कनेक्शन है कि यशवी इज इन द फ्रेंड लिस्ट ऑफ तन्वी एंड तन्वी इज इन द फ्रेंड लिस्ट ऑफ यशवी। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अगर दो डेटा हैं तो उनके बीच में कनेक्शन क्या हो गया, फ्रेंडशिप। ऐसे ही हो सकता है कि यशवी जो है वो किसी और क्या नाम आ रहा है, अंजलि, तो यशवी मान लीजिए अंजलि की फ्रेंड है। ठीक है, और अंजलि जो है वो किसी प्रियंका की फ्रेंड है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है यानी कि ये कहलाते हैं अपने नोड्स, और इनको बोलते हैं अपन लोग एजेस। कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, एजेस। तो ये नोड्स और एजेस का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, और उसका तन्वी प्रियंका की फ्रेंड हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यशस्वी प्रियंका की फ्रेंड हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है ना, तो इनके बीच में कोई भी एज नहीं है। तो ये जो नोड्स और एज का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं अपन लोग ग्राफ। ठीक है ना, तो फेसबुक के ऊपर जो भी आपके ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो किस डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़े हुए हैं, ग्राफ की हेल्प से। ठीक है ना, और ग्राफ इज ए मच कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए अपन इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे तरीके। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन में अपन एक चीज और बात की थी कि एफिशिएंट यूज। एफिशिएंट यूज का मतलब क्या होता है कि डेटा को अरेंज तो आपने कर दिया, जैसे कि आपके घर की अगर बात करें अपन लोग कि आपने अपने स्टडी रूम में बुक्स को रख दिया तरीके से, है ना, कॉपीज को तरीके से रख दिया, आपका जो भी बाकी रॉ मटेरियल था उसको तरीके से रख दिया, और जो रफ कॉपीज उनको तरीके से रख दिया। अब एफिशिएंट यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब ये होता है कि जिस समय आपको मान लीजिए कि आपको लेटेस्ट सी प्लस प्लस या लेटेस्ट सी ये बुक है कोई, वो बुक आपको ढूंढनी है, तो अगर आपने बुक्स को तरीके से रखा हुआ है और अरेंज भी कर रखा है तरीके से, तो वो बुक आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बुक्स आपने अगर ऐसे तितर बितर करके रखी हुई है, 100 बुक्स हैं और 100 में से एक बुक निकालनी है तो ढूंढने में दिक्कत आएगी। उसको बोलते हैं अपन लोग सर्चिंग। क्या बोलते हैं, मैं ये भी लिख लेता हूँ एक बार, यानी ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर को अपन लोग शॉर्ट में डीएस भी बोल सकते हैं आज के बाद। ठीक है ना, तो जब कोई मैं डीएस बोलूंगा तो आप क्या समझ जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर से। तो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहला ऑपरेशन हो गया सर्चिंग। तो अगर आपने डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा होगा तो सर्चिंग भी आसान होगी। अगर वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है तो सर्चिंग आसान होगी क्या, यस या नो बताओ, यस या नो। No, sir. No, No, sir. sir. If the data is not No, sir. systematically arranged, so we cannot search data systematically. तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्चिंग करना। एक वर्ड आता है इसमें सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, हम लोग अरेंज करते हैं। तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये जितने डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, जो कुछ भी थे, इन सब में किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च कैसे करते हैं, क्योंकि मल्टीपल आइटम है। अगर अपन एरे का एग्जांपल ले तो मान लीजिए 10-20 आइटम्स की एरे है। ठीक है, और 20 आइटम्स की एरे में मान लीजिए आपको आइटम नंबर 18 ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे आप लिखते हो A17, लिखते हो ना ऐसे, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से लेकर 19 तक होगा अगर 20 की एरे है तो जैसे आपने लिखा A17, तुरंत क्या हो गया, आपको 18 नंबर का आइटम मिल गया। आपको आइटम नंबर 6 चाहिए तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सा A5, तो आपको 6 नंबर का आइटम मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एरे को सिक्वेंशियली सिस्टमेटिकली अरेंज किया था लीनियर वे के अंदर। अगर हम एरे के आइटम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करते तो फिर हम आइटम्स को सर्च भी नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो ऐसे ही लिंक लिस्ट में या ऐसे ही स्टैक में, क्यू में सर्चिंग कैसे होती है वो हम लोग सीखेंगे अलग अलग क्लासेस के अंदर। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आर द टू बेसिक ऑपरेशंस ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, इंसर्टिंग। इंसर्टिंग का मतलब, अगर मान लीजिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर या कोई एरे भी है, एरे में 10 आइटम डाल दिया आपने और आपको 11वां आइटम और डालना, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इंसर्ट करना। डेटा स्ट्रक्चर में नया आइटम को इंसर्ट करना।
तो आप डेटा स्ट्रक्चर में नए आइटम को इंसर्ट कर सकते हो, एंड सिमिलरली आप किसी एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट भी कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिलीटिंग। डिलीटिंग, ठीक है। ऐसे होता है अपडेटिंग, ठीक है। अपडेटिंग का मतलब क्या हो गया कि हम किसी आइटम को हमने सर्च किया, जैसे मान लो वहां पे लिखा होता है विजय, और विजय को हटा के वो करना है अजय, तो आप विजय को हटाओगे, उस पर क्या कर दोगे, अजय कर दोगे। या मान लीजिए कोई किसी स्पेलिंग को चेंज करना है, कुछ भी अपडेशन करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपडेटिंग करना। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर: सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड अपडेटिंग, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं अपन लोग एफिशिएंट यूज, जो अपन ने डेफिनेशन में काम लिया था ना, एफिशिएंट यूज। एफिशिएंट यूज का मतलब कि एफिशिएंटली हम लोग क्या कर सके, सर्च कर सके, एफिशिएंटली हम सॉर्टिंग कर सके, एफिशिएंटली नया डेटा को इंसर्ट कर सके, एफिशिएंटली एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट भी कर सके, और एफिशिएंटली हम क्या कर सके, डेटा को अपडेट भी कर सके। तो अगर हमने डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है तो ये पांचों काम एफिशिएंटली हो जाएंगे। अगर डेटा सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है तो फिर ये इनमें से कुछ काम या सारे काम आसानी से नहीं हो पाएंगे। हो तो जाएंगे, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी की बात करते हैं, जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, इंग्लिश की डिक्शनरी में आप किसी भी आइटम को, लाखों वर्ड होते हैं उसके अंदर, लेकिन आपको मान लो ढूंढना है कि भाई साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी का मतलब ढूंढने के लिए आपने क्या किया, सीधा आप डिक्शनरी में आप पी पे चले गए, और पी के बाद में जो एस आता है एस पे चले गए। ऐसे करते करते आपको यानी 2 या 3 अटेम्प्ट में आप सिंपली साइकोलॉजी वर्ड ढूंढ लोगे और साइकोलॉजी का मीनिंग भी ढूंढ लोगे। क्यों? क्योंकि वो डिक्शनरी सिस्टमेटिकली सॉर्ट होकर के अरेंज की हुई थी। तो अगर आइटम सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है तो हम लाखों में से भी एक आइटम को सेकंड्स के अंदर ढूंढ लेंगे, और अगर वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है तो फिर हमको या तो इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपका जो टाइम था वो ज्यादा लगेगा आपको। तो whatever we can say, but complexity will be increased in the case the data is not systematically arranged। तो आज की पूरी कहानी में हमारे समझ में यही आता है कि जिस डेटा की और इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, हमने सिंपल सी बात शुरू की थी कि whatever we feed into the computer it is called data, and whatever computer gives us after the processing it is known as information, ठीक है ना। तो ये डेटा से जो इंफॉर्मेशन बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर आसान करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको डेटा को कंप्यूटर के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करना सीखना पड़ेगा। अगर डेटा कंप्यूटर में सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर किया हुआ है तो उसको रिट्रीव करना और उसको एफिशिएंटली यूज करना आसान हो जाएगा, और वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है तो उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों के? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपन आगे बढ़ने के Yes, पहले sir. ऐसा करते हैं, यहाँ तक का जो पढ़ाया गया आपको Yes, sir. बुक देखो, कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई वर्ड दोबारा रिपीट करने की आपकी इच्छा हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपकी पूछने की इच्छा नहीं भी हो रही हो तो जबरदस्ती पूछो। एनी क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया उसका समझ में नहीं आया आपको? No, sir. नहीं, कुछ तो पूछना पड़ेगा कम से कम। आई नीड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। सर सॉर्टिंग दोबारा समझा दो। अरे वाह 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 वाह, है ना। कुछ तो पूछा, कुछ ही बोल दो फिर, चलो कोई बात नहीं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो डेटा या जो भी हमने डेटा को अरेंज किया हुआ है, जो मल्टीपल आइटम्स अरेंज किए हुए हैं, ठीक है ना, उनको इस तरीके से अरेंज करना कि जो वो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाए तरीके से। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 7 3 4 2, तो 1 7 3 4 2 अभी क्या है कि वो अरेंज नहीं है, तो अपन उसको कर देंगे 2 3 4, या 1 पहले आएगा तो 1 2 3 4 7, यानी सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, क्योंकि सॉर्टिंग की आपका डेटा का टाइप क्या है, डेटा का वॉल्यूम कितना है, उन सब के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप सॉर्टिंग के लिए कौन सा तरीका यूज करोगे। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉर्टिंग्स अवेलेबल इन डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपने कोई नाम सुने हो तो बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द सॉर्टिंग, ठीक है ना। और डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को काम में लेते हैं, इसको जानने के लिए आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा का वॉल्यूम कितना है, डेटा का टाइप कितना है, डेटा में आइटम्स कैसे हैं। अगर मान लो लगे साहब 8-10 आइटम ही है तो उनको सॉर्ट करने के लिए अपन को कोई बड़ी हाई फाई एल्गोरिथम नहीं चाहिए, अपन किसी भी एल्गोरिथम से सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आइटम लाखों में है तो लाखों में अगर आइटम सॉर्ट करने हैं तो फिर आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स काम में लेनी पड़ती है, और वो टेक्निक्स अपन लोग आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे क्विक सॉर्ट आपने नाम सुना होगा, मर्ज सॉर्ट का नाम सुना होगा, रेडिक्स सॉर्ट का नाम सुना होगा, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग का मतलब अरेंजिंग द आइटम्स इन सच अ वे दैट दे आर पुट
either in the ascending order or in the descending order. ठीक है, this is called sorting. Okay, sir. Thank you. डिक्शनरी में, क्योंकि डिक्शनरी में डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में होता है, एबीसीडी के साथ, पता है क्या आपको? ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले उसके बाद में आएंगे, सी वाले उसके बाद में आएंगे, और यही कारण है कि आप डिक्शनरी में आसानी से आइटम्स को सर्च कर सकते हो. तो इफ डेटा इज सॉर्टेड तो सर्चिंग विल बी इजी. अगर डेटा इज नॉट सॉर्टेड तो सर्चिंग विल नॉट बी सो इजी. ठीक है, और कोई दूसरा सवाल? पता है आपको, ये सवाल जवाब करने से मुझे पता लगेगा कि आपकी क्लास में कौन अटेंटिव है, कौन थोड़ा सा कितना वीक है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है. तो आपके सवाल जवाब से पता लगता है ये. ठीक है ना, मुझे पता है मैंने अच्छा पढ़ाया है, मैंने सही पढ़ाया है और आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो पूछना ही पड़ेगा ताकि मैं आपको असेस भी कर सकूं. सर स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है? वेरी नाइस. स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्टैक और क्यू दोनों ही क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर का मतलब सीक्वेंशियल अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा. ठीक है, बट स्टैक में क्या होता है, डेटा इज अरेंज इन सच अ वे दैट द डेटा व्हिच कम्स लास्ट दैट इज एक्सेस्ड फर्स्ट. जैसे कि हमने बुक्स का एग्जांपल लिया था. बुक्स में क्या होता है कि आपने पहली बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी बुक, उसके ऊपर तीसरी बुक, उसके ऊपर चौथी बुक, पांचवी बुक, छठी बुक. अब पहले कौन सी निकलेगी? छठी वाली. यानी डेटा व्हिच कम्स लास्ट दैट इज एक्सेस्ड फर्स्ट. दिस इज कॉल्ड LIFO अरेंजमेंट, लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट. इट इज कॉल्ड एज स्टैक. और क्यू में क्या होता है? क्यू में क्या होता है कि पहला आदमी यहाँ पे लाइन में लग गया, दूसरा उसके पीछे लग गया, तीसरा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, पांचवा उसके पीछे, छठा उसके पीछे. पहले कौन सा प्रोसेस होगा? सबसे आगे वाला. फिर उसके बाद में सेकंड वाला. उसके बाद जैसे फीस की क्यू लगती है, ठीक है ना, सिनेमा हॉल पे क्यू लगती है. ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड क्यू अरेंजमेंट ऑफ डेटा. ठीक है, स्टैक का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये आपने एमएस वर्ड में किया होगा ना, पर कंट्रोल जेड करते हैं, अनडू करते हैं. क्या आप लोगों ने अनडू किया? कितने लोगों ने किया अनडू? यस सर किया है. तो उसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने 1 2 3 4 5 काम किए हुए हैं, तो जैसे आप कंट्रोल जेड करते हो तो कौन सा काम डिलीट होता है पहले? जो पांचवा लास्ट किया था. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड है लास्ट वाला. दैट इज कॉल्ड स्टैक अरेंजमेंट ऑफ द डेटा. तो जो आप कंट्रोल जेड करते हो दैट इज स्टैक अरेंजमेंट ऑफ डेटा. ठीक है ना. और क्यू की अगर अपन बात करें तो क्यू में क्या होता है कि अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जॉब शेड्यूलिंग, FCFS. Yes, sir. तो FCFS में क्या था कि अगर मान लीजिए डिफरेंट प्रोसेस है और वो सीपीयू के पास उसके प्रोसेसिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि लाइन में लग जाते हैं कि फर्स्ट ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले आया था उसको सीपीयू पहले प्रोसेस करेगा, जो बाद में आया था उसको सीपीयू बाद में प्रोसेस करेगा, जो उसके बाद में आया था उसको उसके बाद में प्रोसेस करेगा. तो दैट FCFS शेड्यूलिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है ना. तो ये जो क्यू स्टैक जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं काम आते हैं. जैसे कि अपन ने बात की थी कि भाई ये ग्राफ कहाँ काम आता है, कि फेसबुक में अगर आप उनको मैनेज कर रहे हो, कौन किसका फ्रेंड है क्या है, तो वहाँ ग्राफ काम में आता है. ठीक है ना. एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, I want to ask a question. Sir, सारा डेटा जब लीनियर ही स्टोर होगा तो फिर अलग अलग पार्ट्स क्यों? मतलब जब सारा लीनियर ही स्टोर होना है तो फिर एरे में भी तो हो सकता है, फिर ये सारे क्यों यूज करने हैं? ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर. जो एरे की प्रॉपर्टी है ना, जैसे हम अपने एक छोटी सी बात करते हैं, अभी आपने लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं वैसे, लेकिन फिर बताता हूँ मैं आपको. एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एरे में आपको लिखना पड़ता है कि 20 की एरे होगी, 10 की एरे होगी, 50 की एरे होगी. आप डिक्लेयर करते हो ना पहले इंट नम 10. इसका मतलब क्या होता है, ये जो मेरी एरे बनेगी वो 10 एलिमेंट्स की एरे. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए जब आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो और आइटम खाली 5 ही है, तो यानी आपने एरे की साइज तो कर दी 10 और आइटम कितने थे? 5. तो 5 आइटम तो क्या हो गया, 5 लोकेशन पे स्टोर हो गए. लेकिन जो बाकी 5 लोकेशन है जो एरे की आपने डिक्लेयर कर रखी है, वो तो वेस्टेज हो गई ना. तो ये तो हो गया, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एरे. और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एरे की साइज तो बनाई आपने 10 की और आइटम कितने आ गए? 25. तो अगर एरे की साइज 10 है तो उसमें 10 आइटम आ सकते हैं, तो बाकी 15 आइटम कहाँ जाएंगे? ठीक है ना. तो उसको बोल दिया अपन ने ओवरफ्लो ऑफ द एरे. तो ये जो अंडरफ्लो ओवरफ्लो जो एरे में होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एरे की प्रॉपर्टी कि हमको एरे को डिक्लेयर करते समय एरे की साइज पहले बतानी पड़ती है. तो इसी का सॉल्यूशन था लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में क्या होता है, भी एरे की तरह ही है और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ही है, बट लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइज पहले डिफाइन नहीं करते हैं. लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहला आइटम आया लिस्ट में जुड़ गया, दूसरा आया लिस्ट में जुड़ गया, तीसरा आया लिस्ट में जुड़ गया, चौथा आया लिस्ट में जुड़ गया.
जितने आइटम आते हैं लिस्ट में जुड़ते रहते हैं, और जितने आइटम आए उतनी मेमोरी एलोकेट होती है डायनामिकली, ठीक है ना। तो अगर आपको रैंडम साइज चाहिए किसी भी एरे की, तो फिर आप एरे डिक्लेयर करने के बजाय लिंक लिस्ट डिक्लेयर करो, ठीक है, अदरवाइज आप एरे डिक्लेयर कर लो। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि भाई जो लास्ट में आइटम आता है वो पहले निकले, तो फिर आप क्या करो, स्टैक लेके आओ। अगर आपको ऐसा आइटम चाहिए कि जो पहले आया पहले निकले, बाद में आया बाद में निकले, तो आप क्या काम में लो, क्यू काम में लो। तो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कि आप जिस भी लिस्ट को काम में लेना चाह रहे हैं उस लिस्ट में आपके ऑपरेशंस कैसे होने हैं, उसी के हिसाब से आप लिस्ट को डिफाइन करोगे कि एरे बनेगी, लिंक लिस्ट बनेगी, क्यू बनेगी या स्टैक बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। यस सर। फाइन। ओके सर। और कोई कुछ पूछना चाहे? अभी वी हैव 8 मोर मिनट्स लेफ्ट, 8 मिनट का टाइम बाकी है। आज का टॉपिक तो हो गया पूरा, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर था अपना, वो लगभग पूरा हो गया है। अब अपन क्वेरी सॉल्विंग के बहाने थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो अभी 3 लोग या सर अपने सोशल मीडियाज होते हैं, इनमें लीनियर और नॉन लीनियर दोनों साथ पे चलते हैं? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कि आपका कौन सा ऑपरेशन किस जगह क्या काम आ रहा है। तो आप सोशल मीडिया पे तो स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ग्राफ सभी काम में आते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया खाली समझाने के लिए दिया एग्जांपल कि भाई देखो ग्राफ ऐसे काम में आ रहा है, कहीं पे क्यू भी काम आएगी, कहीं पे स्टैक भी काम आएगी, ठीक है ना। ओके सर। जैसे आपकी पोस्टिंग्स आती है ना, जो भी आपकी पोस्टिंग आती है, जो फेसबुक के पोस्ट आप देखते हो, उसमें भी क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक अरेंजमेंट होता है ना, कि जिसने लेटेस्ट पोस्ट किया वो आपको पहले दिखेगा, जिसने उसके पहले किया था वो बाद में दिखेगा, और जिसने कल पोस्ट किया था वो आपको पोस्ट लास्ट में दिखेगा, ठीक है ना। तो वहां पे लीफ अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, जो फेसबुक के ऊपर आप देखते हो वो तुरंत वाला तुरंत दिखाता है आपको, ठीक है। यस सर। फाइन। और कोई सवाल, कुछ भी इससे रिलेटेड, डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो आपको? सर जी यूजर कैन नॉट डिफाइन द साइज ऑफ एन एरे। एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? सर मतलब एक यूजर जब मतलब अपना डेटा इनपुट करता है तब वो एरे का साइज डिफाइन नहीं कर सकता, इट हैज टू बी प्री डिफाइंड एवरी टाइम, राइट? नहीं, ऐसा क्यों होता है? डिफाइन तो आप ही करोगे जब प्रोग्राम बनाओगे तो आप। नहीं सर, प्रोग्रामर ने यूजर यूजर का मतलब जो कि उसको यूज कर रहा है एरे को। हाँ, यस सर। ये तो कह रहा हूँ ना मैं आपको, रन टाइम पे यूजर का मतलब रन टाइम, कि रन टाइम पे जब कभी कोई आपके प्रोग्राम को यूज कर रहा है और माना कि एरे की साइज 20 थी, तो अगर आइटम्स आपके रन टाइम पे 21 आ गए ना, तो 21वां आइटम एरे में जा ही नहीं पाएगा क्योंकि साइज 20 थी उसकी, ठीक है ना। और या रन टाइम पे खाली आपके 5 आइटम ही आए और एरे की साइज 20 है, तो 15 की साइज तो आपकी वेस्टेज हो गई ना। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट काम में लेते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, आगे जाके पढ़ेंगे ढंग से, कि लिंक लिस्ट में होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। तो जितने आइटम आए उतनों को मेमोरी एलोकेट हुई और उतनों की मेमोरी काम में आई, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता उसके अंदर। बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है एरे से। एरे को डिफाइन करना, यूज करना थोड़ा सा आसान है, लिंक लिस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। ये अपन लोग जब स्पेसिफिक लिंक लिस्ट के ऊपर आएंगे तो अपन समझेंगे इस चीज को, ठीक है। ओके सर। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने तो सवाल पूछ लिए, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब देखते हैं कौन जवाब देता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कौन बताएगा? आपने अभी जो 4 लोग बोल चुके वो नहीं बोलेंगे जिन्होंने सवाल पूछे थे। अब जो बाकी लोग उनमें से कोई बोलेगा कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। जो मैंने सर आपको- डेटा स्ट्रक्चर। कौन बोल रहा है, नाम बताएं पहले अपना। सर गणिका। कनिका बताइए। Sir, data structure is a systematic arrangement of data in such a way that it can be used efficiently. पढ़ के बताइए डेफिनेशन मैंने लिखाई, ठीक है। समझाइए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? सब एक तरीके से मैनेज हो रही है, I mean systematic मैनर में उसको अरेंज करना, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। वैसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन लोग लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल। लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल यानी कि हम डेटा को एक मॉडल के हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे क्या था, स्टैक में कौन सा मॉडल है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल। क्यू में कौन सा मॉडल है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल। लिंक लिस्ट में कौन सा मॉडल है कि जैसे जैसे आइटम आ रहे हैं हम वैसे वैसे उनके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसको लिस्ट के अंदर जोड़ देते हैं। तो वहां पे कौन सा कहलाता है, उसको बोलते हैं अपन लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मॉडल, ठीक है ना। तो यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, हम कोई पर्टिकुलर लॉजिकल या मैथमेटिकल मॉडल काम में लेते हैं उस आइटम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए,
ठीक है? Yes, sir. Fine. Now who will tell what are the types of data structures? अब इन 5 के अलावा कुछ छठा बोलेगा, जो 5 बोल चुके वो नहीं बोलेंगे। सर primitive Primitive and and complex. पहले नाम बताना ताकि पता लग जाए, आपको दोबारा तो नहीं बोलना। सर स्वाति अग्रवाल। हाँ स्वाति जी बोलिए। Sir, data structures are of two types. First, primitive data structure, and second, complex data structure, which is also known as non-primitive data structure. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं बताएंगे आप? So, all the data types like float, double, int, short, and Or we can say all the primitive data types of the C language or any language, they are called as Yes. primitive data structure. data Fine. structure. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। अब आप में से जो सातवां बोलेगा, बाकी 6 लोग नहीं बोलेंगे ये कि नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? सॉरी, Linear and non-linear. पहले नाम बोलना, नाम बोलना है जो भी जवाब। आकांक्षा, सर आयशा। आयशा, हाँ बताइए आयशा। आप क्या Non-linear. माइक पास आके बोलो। कॉम्प्लेक्स में 2 linear और non-linear. ठीक है, लीनियर में कौन कौन से होते हैं? Sir, LinkedIn. हाँ नाम बोलो। Array, linked list. Sir, Priyanka. Sir, array array, link, ठीक है। first in, first out, queues. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट last in, प्रॉपर्टी, सुनो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इनका प्रॉपर्टी, उसका नाम। Last day. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ये आप में से कोई नवा बोलेगा, बाकी 8 लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर का मतलब क्या हुआ? Linear. Sir, linear मतलब जो continue. Sequential arrangement of data. Yes, items if the items are arranged into the sequential manner, that is called linear data structure. ठीक है? Now who will differentiate between the stack and queue? अब कोई 10वां बोलेगा आप में से, जो बोल चुके वो नहीं बोलेंगे। कौन बच गया वो बोलो। देखो सवाल तो बड़े आसान से पूछ रहा हूँ आपसे, कोई टफ सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ। स्टैक में और क्यू में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कौन बताएगा? Sir, LIFO and FIFO is the difference. Like stack में LIFO method form हम लोग को form कौन करते बोल हैं। रहा है? पहले नाम बताओ, ऐसे नहीं बोलना। सर यशस्वी। यशस्वी बोलिए। हाँ यस सर, स्टैक में हम लोग LIFO फॉर्मेट को यूज में लेते हैं। लाइक जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जस्ट लाइक अ स्टैक। और क्यू में हम लोग FIFO यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आता है हम लोग उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द ऑपरेशंस, पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर? कौन बताएगा जवाब इसका? Sir, Tanvi. तन्वी बताइए आप मुझे। Shrishtika. So we have different operations such as searching, we have inserting, deleting, sorting, and updating also that can be performed over DS. हाँ, मेन जो 2 ऑपरेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। Searching and sorting. और जो इन भाई सर्चिंग और सॉर्टिंग कब हो पाएगी? जब हमने इंसर्टिंग भी कर ली है, या कुछ डिलीटिंग भी कर लिया है, या फिर हमने कुछ अपडेशंस भी कर लिए हैं, ठीक है ना? Yes, sir. तो बेस्ट 2 ऑपरेशन हो गए, सर्चिंग, सॉर्टिंग, और उनके अलावा बाकी 3 और हो गए, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन, ठीक है? Yes, So sir. today we have discussed about the introduction to data structure. What is data structure? What are the types of data structures? What is linear data structure? What is non-linear data structure? And in the subsequent next classes, we will discuss all these concepts in detail. इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप, जो आज आपको इस बोर्ड पे दिखाया है ना ये, कि आप आने वाले 30-40 क्लासेस के अंदर अपने पूरे सेमेस्टर के अंदर यही सब पढ़ेंगे ढंग से। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, इनमें से कुछ भी टफ नहीं है। अगर जिस तरह आपको आज की क्लास आसान लगी है ना, उस तरह बाकी क्लासेस भी आसान लगेंगी। बस शर्त क्या है, मैं भी बोलूंगा और मेरे अलावा आप लोग भी बोलेंगे। अगर मैं अकेला ही बोलता गया तो फिर मुझे समझ में आएगा, आपके पता नहीं समझ में आएगी नहीं आए। लेकिन अगर आप भी बोलेंगे, अटेंटिव रहेंगे, और आप ध्यान रखना हर क्लास के लास्ट में अपन लोग 5 से 10 मिनट का ये क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर, ठीक है ना? ताकि अपना इंटरेक्शन भी आपस में होता रहे और पता लगता रहे कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ये आइडिया सही है कि और कुछ नया उसमें जोड़ना है?
बता दीजिएगा अगली बार आप, ठीक है? So with that, I welcome you all in your first day of the this session, and I hope that whatever classes you have attended today was very nice, and this class was also fruitful to all of you. And let us meet in the next classes, and let us work together for the betterment of each and every one of you. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, No, no. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Fine. Okay, bye. Now you can all leave.